Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel English Words. From today's onward, I'm gonna teach you a new book of New Oxford Modern English. It's New Oxford Modern English class 7th book and this is its 3rd edition. Its authors are Nicholas Horsburgh and Claire Horsburgh. So let's start. Okay, the first chapter of this book is basically a poem and its title is Adventures of Isabel. In this video I will read this poem and then I will discuss meaning of some difficult words along with discussing words to know part. I will also translate and explain this poem thoroughly. Okay, let's start. Words to know. Cavernous, a large dark cave like space. केवर्नस कहते हैं कि एक बहुत ही बड़ी जो गार की तरह कोई अंधेरी और बड़ी सी जगह हो. कॉन्कॉक्टर, मेकर, पर्सन हु मिक्सेस इंग्रेडिएंट्स टू मेक समथिंग. किसी चीज़ को बनाने वाला या वो आदमी जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिला के कोई नई चीज़ बनाता है. क्राउड, शाउट विद डिलाइट. क्राउड का मतलब है कि खुशी से चिल्लाना. हिडियस, वेरी अगली, बहुत गंदा. पिच, अ ब्लैक स्टिकी सब्सटेंस मेड फ्रॉम टॉर. एक ब्लैक कलर का चिपकने वाला एक मादा जो टार से बना होता है. रैंकर, लॉन्ग स्टैंडिंग बिटरनेस और रिजेंटमेंट, मतलब अपने अंदर किसी के खिलाफ कोई बुग़्ज़ रखना, हसद रखना. रेवनस, वेरी हंग्री, बहुत ज़्यादा भूख लगी होना. स्करी, मूव हर्डली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप्स. स्करी का मतलब है कि जल्दी जल्दी से चलना लेकिन छोटे छोटे कदम लेके. सेल्फ रिलायंट, एबल टू रिलाई ऑन एंड लुक आफ्टर वन सेल्फ. खुद पे अपने आप पे रिलाई करना, अपने आप पे डिपेंड करना और अपनी खुद से अपनी लुक आफ्टर करना, अपना खुद ध्यान रखना. स्प्रिंकल्ड, इरेगुलरली डिस्पर्स, रैंडमली स्प्रेड आउट, किसी चीज़ को छिड़कना यानी जैसे हम छिड़कते हैं तो कोई चीज़ किधर जाती है किधर रैंडमली स्प्रेड हो जाता है. ज़्यूबैक, टोस्टेड क्रिस्प ब्रेड. ज़्यूबैक कहते हैं टोस्ट की हुई क्रिस्पी ब्रेड को. Okay, let's start reading this poem. Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry, the bear was ravenous. The bear's big mouth was cruel and cavernous. The bear said, Isabel, glad to meet you. How do, Isabel? No, I'll eat you. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She washed her hands and she straightened her hair up. Then Isabel quietly ate the bear up. Once in a night as black as pitch, Isabel met a wicked old witch. The witch's face was cross and wrinkled. The witch's gum with teeth were sprinkled. Ho, ho, Isabel, the old witch crowed. I'll turn you into an ugly toad. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She showed no rage, she showed no rancor. But she turned the witch into milk and drank her. Isabel met a hideous giant. Isabel continued self-reliant. The giant was hairy, the giant was horrid. He had one eye in the middle of his forehead. Good morning, Isabel, the giant said. I'll grind your bones to make my bread. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. She nipped the zoo back that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. Isabel met a troublesome doctor. He punched and he poked till he really shocked her. The doctor's talk was of cough and chills, and the doctor's satchel bulged with pills. The doctor said unto Isabel, Swallow this, it will make you well. Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. Took those pills from the pill concoctor, and Isabel calmly cured the doctor. ऑजन नैश, इसके पोइट का नाम है ऑजन नैश.
Okay, let's start explanation and translation of this poem. Isabel met an enormous bear. Isabel didn't care. The bear was hungry, the bear was ravenous, the bear's big mouth was cruel and cavernous. अच्छा, इज़ाबेल मेट एन अनॉर्मस बियर. अनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़ा, वेरी बिग, ह्यूज. अनॉर्मस बियर यानी बहुत बड़े बियर से मिली, भालू से. इज़ाबेल डिडंट केयर, लेकिन इज़ाबेल को उससे कोई डर नहीं लगा. मतलब वो उससे डरी नहीं, उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, यानी वो उससे डरी नहीं. द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रेवनस. बियर जो था उसको भूख लगी हुई थी और वो बहुत ज़्यादा भूखा था. द बियर्स, हंग्री कहते हैं ना भूख लगने को, रेवनस बहुत ज़्यादा भूखा होना. द बियर वॉज हंग्री, द बियर वॉज रेवनस. बियर जो था वो बहुत ज़्यादा भूखा था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी. द बियर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवरनस. और बियर का जो बड़ा सा मुँह था वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था. क्रूअल कहते हैं जालिम, जो किसी के मतलब किसी को वो ना छोड़े, यानी वो बहुत ज़्यादा जालिम, मतलब वो कुछ भी खा जाने वाला. एंड कैवर्नस, और बहुत बड़ा, केव की तरह, अंदर से डार्क, जैसे हमने ऊपर पढ़ा है ना हॉरिज़ॉन्टल में, डार्क एंड वाइट. तो उसका बहुत बड़ा सा मुंह था जो अंदर से डार्क, मतलब केव लाइक शेप का बहुत बड़ा था, यानी उसमें से वो कुछ भी खा सकता था, यानी वो बहुत बड़ा था. द बियर सेड, इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू. अब उनके दरमियान जो बातें हुई हैं वो उसको बता रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है पोइट कि पहले उससे भालू मिला और वो भालू क्या था, भूखा था. तो अब वो कह रहा है, अब बियर जो है वो इज़ाबेल से बात कर रहा है, तो वो कह रहा है द बियर सेड, बियर ने उससे कहा, इज़ाबेल ग्लैड टू मीट यू, इज़ाबेल आपसे मिलके खुशी हुई, यानी वो ग्रीटिंग उससे कर रहा है. हाउ डू इज़ाबेल नो आई ईट यू. अब मुझे बताओ इज़ाबेल कि मैं तुम्हें कैसे खाऊं. पहले उससे अच्छे से उसने ग्रीट किया, मिला है, अब उसे कह रहा है मैं तुम्हें कैसे खाऊं. इज़ाबेल डिडंट वरी. इज़ाबेल को कोई डर नहीं लगा उससे. इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. ना इज़ाबेल ने कोई चीख मारी, ना इज़ाबेल उधर से भागी. शी वॉश्ड हर हैंड्स एंड शी स्ट्रेटन्ड हर हेयर अप. Then Isabel quietly ate the beer up. उसने अपने हाथ धोए और अपने बालों को सीधा किया और उसने आराम से आहिस्ता से पूरा बियर खा लिया. यानी बेसिकली ये फिक्शनल स्टोरी है, ऐसा रियलिटी में तो होता नहीं है कि एनिमल जो हैं वो ह्यूमन से बात करें, या जो छोटी बच्ची है वो इतने बियर को खा ले. मतलब सब कुछ फिक्शनल है, जस्ट टू क्रिएट फन. ओके, नेक्स्ट स्टैंजा. अब आगे क्या हो रहा है उधर. देन इज़ाबेल क्वाइटली एट once in a night as black as pitch, Isabel met a wicked old witch. The witch's face was cross and wrinkled, the witch's gown with teeth were sprinkled. अब एक नाइट क्या हुआ है कि जो वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच, एक बहुत ही स्याह रात थी, यानी उसमें कोई चांद नहीं था, कोई रोशनी नहीं थी, यानी बहुत ज़्यादा स्याह रात थी. उसमें इज़ाबेल मेट अ विकेड ओल्ड विच. इज़ाबेल की एक बहुत ही, विकेट कहते हैं बहुत ही क्लेवर, चालाक, जो बूढ़ी विच थी. विच चुड़ैल को कहते हैं. एक बूढ़ी सी चालाक जो चुड़ैल थी, उससे इज़ाबेल की मुलाकात हुई. द विच's फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड. विच का जो फेस था, चुड़ैल का फेस, वो क्रॉस मतलब उसके ऊपर लगे हुए थे और उसके ऊपर रिंकल आए हुए थे, झुर्रियाँ आई हुई थी. द विच's गम विद टिथ वर स्प्रिंकल्ड. और विचेस के जो गम थे उसके ऊपर जो टिथ थे वो ऐसे था कि जैसे रैंडमली सारे स्प्रेड हुए हुए थे उसके गम के ऊपर ना, उसके टिथ, यानी उसके जो दांत थे उसके गम्स के ऊपर रैंडमली थे स्प्रेड हुए, मतलब एक प्रॉपर जैसे हमारे होते हैं ना शेप, इस तरह नहीं थी, सिर्फ रैंडमली उसके ऊपर थे. हो इज़ाबेल द ओल्ड विच क्रॉन. और वो जो विच थी, बूढ़ी विच, उसने खुशी से चिल्ला के बोला, हो इज़ाबेल, आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड. मैं तुम्हें एक बहुत ही गंदे, टोड कहते हैं मेंढक को, तो कहती है आई विल टर्न यू इनटू एन अगली टोड, मैं तुम्हें एक बहुत ही गंदे मेंढक में तब्दील कर दूंगी. इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी. इज़ाबेल ना तो परेशान हुई, ना वो चिल्लाई और ना उधर से भागी. शी शोड नो रेग, शी शोड नो रैंकर. उसने ना कोई गुस्सा दिखाया, रेग कहते हैं गुस्से को. एंड शी शोड नो रैंकर, और ना उसके दिल में उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात आई, हसद वगैरह आया.
मतलब ना उसके दिल में कोई इस तरह की उसके खिलाफ बात आई। बट शी टर्न द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर, लेकिन उसने क्या किया कि उस विच को तब्दील कर दिया मिल्क में और उसको पी गई, यानी विच को मिल्क बना दिया और उसको पी गई। द नेक्स्ट क्या हुआ, इज़ाबेल मेट अ हिडियस जाइंट, इज़ाबेल कॉन्टिन्यूड सेल्फ रिलायंट। अब इज़ाबेल एक हिडियस कहते हैं बहुत बड़ा, वेरी ह्यूज, जाइंट एक जो भूत होता है उससे मिली। इज़ाबेल कॉन्टिन्यूड सेल्फ रिलायंट, इज़ाबेल अभी भी खुद पे डिपेंड कर रही थी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं थी, वो सबसे खुद ही मुकाबला कर रही थी। तो वो सबसे मुकाबला करते हुए आगे वो हर चीज़ का खुद से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ी। The giant was hairy, the giant was hooded. He had one eye in the middle of his forehead. वो जो जाइंट था, वो जो भूत था, वो उसके ऊपर बाल थे बहुत ज़्यादा, और वो क्या था, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, हॉरिड ख़तरनाक था। He had one eye in the middle of his forehead. उसकी जो पेशानी थी उसके दरमियान में उसकी एक आँख थी। Good morning, Isabel, the giant said. I'll grind your bones to make my bread. वो भी उसको ग्रीट करता है, उसको बोलता है गुड मॉर्निंग, और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी जो हड्डियां हैं उनको पीस के अपनी ब्रेड बना लूँगा, यानी अपना खाना बना लूँगा। इज़ाबेल डिडंट वरी, इज़ाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी। इज़ाबेल ना तो परेशान हुई, ना वो भागी और ना वो चिल्लाई। She nipped the zoo back that she always fed off, and when it was gone, she cut the giant's head off. उसने क्या किया, ज़्यूबैक उसके कोई ख़ास किस्म का टोस्ट है जो इज़ाबेल खाती थी, तो उसने उसको निब किया, यानी उसकी थोड़ा थोड़ा खाया, एंड जिस मतलब जो वो हमेशा खाती थी वो तो उसने थोड़ा सा खाया। एंड व्हेन इट वाज गॉन, और जब वो चला गया, शी कट द जायंट्स हेड ऑफ, तो उसने उस बड़े जायंट का जो सर था उसको अलग कर दिया। Isabel met a troublesome doctor. Next stanza. Isabel met a troublesome doctor. He punched and he poked till he really shocked her. इज़ाबेल जो था वो एक बहुत ही परेशान करने वाला, ट्रबलसम जो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला डॉक्टर था, उससे मिली। He punched and he poked till he really shocked her. वो उस टाइम तक उसको पंच करता या उसको पोक करता, मतलब उसको पंच मारता या उसको जो सुई वगैरह होती है उससे पोक करता, जब तक कि वो शॉक ना हो जाती, हैरान ना हो जाती। द डॉक्टर्स टॉक वॉज ऑफ कफ एंड चिल्स एंड द डॉक्टर्स सेचल बल्ब विद पिल्स। वो जो डॉक्टर था उसकी हमेशा बातें या तो खांसी की होती थी, चिल की, सर्दी की होती थी, इसके बारे में वो बात करता था। और उसका जो सैचल था, यानी उसके पास जो एक बैग होता है, डॉक्टर के पास अक्सर आपने देखा होता है कि बैग होता है, तो उसके पास वो जो बैग था वो हमेशा पिल्स से, दवाइयों से भरा रहता था। द डॉक्टर सेड ऑन टू इज़ाबेल, स्वेलो दिस, इट विल मेक यू वेल। डॉक्टर जो है वो इज़ाबेल से कहता है कि स्वेलो दिस, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, कि इसको निगल लो तो आप ठीक हो जाओगी। Isabel didn't worry. Isabel didn't scream or scurry. Isabel ना तो परेशान हुई, ना चिल्लाई और ना भागी। Those pills from the pill concoctor and Isabel calmly cured the doctor. उसने वो जो पिल्स, वो जो दवाइयाँ बनाने वाला था, और जो मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके कोई नई चीज़, कोई नई बनाता था, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिक्स करके कोई नई दवाई बनाता था। तो वो जो पिल्स बनाने वाला था कॉन्कॉक्टर, उसने उससे सारी पिल्स ली और उसने डॉक्टर का इलाज कर दिया। ऑर्डन नैश इसके पोइट का नाम है। लेट्स रीड अबाउट इट्स पोइट। Auden Nash, 1902 to 1971, was an American poet known for writing light comic verse. Auden Nash अमेरिका का एक पोइट था और उस अपनी राइटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। और किस तरह की मतलब वो अपनी लाइट और कॉमिक राइटिंग, यानी मज़ाहिया और किस्म की जो अपनी राइटिंग थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था। ही रोट ओवर 500 कॉमिक पोम्स, उन्होंने तकरीबन 500 मज़ाहिया नज़में लिखी। फ्रॉम अ यंग एज ही लव टू राइम and would often make up or adopt words if he could not find one that rhymed. अब क्या कहता था, शुरू से ही, अपनी यंग एज से ही, जवानी की उम्र से ही उनको राइमिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, या मतलब राइमिंग वर्ड्स और राइम वगैरह। तो वो क्या करते थे, यानी वो खुद से राइमिंग बना देते, और अगर उनको नहीं मिला था तो वो अपने ही वर्ड्स को राइम में चेंज कर लेते थे। थी हमारी पोम
इट्स बेसिकली अ फिक्शनल पोम, मतलब इसमें सब कुछ रियलिटी नहीं है। एक फिक्शनल पोम है जिसको पोइट ने जस्ट फॉर फन एंड कॉमिक है ना, वो उन्होंने बताया है कि पोइट जो है वो कॉमिक राइटिंग की वजह से फेमस है, तो ये भी उसका एक कॉमिक, ये भी उसकी एक कॉमिक पोम है जिसमें उसने थोड़ा सा फ़न, थोड़ा सा मजाक क्रिएट करने की कोशिश की है। बेसिकली ये रियलिटी नहीं है, फिक्शनल पोम है जिसमें इज़ाबेल एक लड़की है और वो कभी बियर से मिलती है तो वो उससे निपट लेती है, और वो इसी तरह वो बियर से बातें करती है और उसको लास्ट पे खा जाती है। फिर वो एक चुड़ैल से मिलती है तो उसको भी वो मिल्क में तब्दील करके ड्रिंक कर जाती है। इसी तरह फिर वो एक बहुत बड़े भूत से मिलती है, उसका भी काम तमाम कर देती है, और लास्ट पे वो डॉक्टर जो उसे बहुत ज़्यादा, जिसने उसे परेशान किया होता है कि उसको मेडिसिन खिलाता है, तो लास्ट पे वो उसका भी कोई इलाज कर देती है। ओके व्यूअर्स, ये थी हमारी पोम एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पोम. I hope you have understood it. If you have not subscribed my channel, please subscribe my channel English Words for further help, and press bell icon so that you will not miss any update. Okay, thanks. Allah Hafiz.